So the Indian Evidence Act 1872, Act number 1 of 1872. Date of enactment is 15th March 1872 and it came into force on फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ये तीन चीजें याद रखना जरूरी है आपको। कोई भी आप मेरा लिखा लो। इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, 15th March 1872 and with effect from first day of September 1872। ठीक है, कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ एविडेंस। First, we are going to discuss the very similar question. We are going to do the chapter preliminary introduction. Now, yesterday we have done substantive and procedural law. So, please read. Substantive and procedural law. आपको पहले क्वेश्चन यही आता, what is law, what are the different types of law. कल पढ़े थे what is substantive law, the law which defines, create, CDC पढ़े थे, create, define and confer substantive rights and duties is known as substantive law. और एक तरीके से अगर समझे तो क्या बोलते हैं इसको, law can be defined as the rules which determine our relations, which regulate the behavior of individuals. It may be substantive law or procedural law. The laws which prescribe our rights and duties are called substantive laws. So what are substantive laws? Substantive law किसको बोलते हैं? The laws which prescribes our rights and duties are called substantive laws. Like the right to inheritance, जायदाद, the right under contract, etc. are the rights which are contained in the rules of substantive law. For example, Indian Penal Code 1860, Indian Contracts Act 1872 are substantive law stating our rights, liabilities and duties. अपने हक, जिम्मेदारी और, अब जिम्मेदारी बोले और क्या बोल सकते हैं आप, राइट्स, लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज। बोलते सर, लायबिलिटीज माने ऐसी जिम्मेदारी जो वापस करना है। ठीक है, अगर आप लोन लिए, दैट लोन हैज बिकम योर लायबिलिटी, जो वापस करना है। ड्यूटीज माने ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभाना है। ठीक है, फर्ज बोलते ना सर जी, फर्ज नहीं, फर्ज नहीं। फर्ज क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। लायबिलिटी माने नेगेटिव वर्ड है। दो जिम्मेदारियां रहती, एक पैसा वापस देना रहता, एक क्या है आपको निभाना रहता। अब शादी क्या है, लायबिलिटी है ड्यूटी है? ड्यूटी है ना सर। इससे ड्यूटी, लायबिलिटी लोन लिए जो चुकाना रहता उसको बोलते हैं लायबिलिटी। मीनिंग ये क्या थी, जिम्मेदारी, लेकिन उसको काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, चुकाने का तरीका अलग है। ये वक्त देके चुकाते, ये पैसे देके चुकाते। समझ में आ रहा? तो व्हाट आर सब्सटेंटिव राइट्स, व्हाट आर सब्सटेंटिव लॉ? लॉ विच प्रिस्क्राइब्स आवर राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। विथ एग्जांपल्स हो गया। उसके बाद द लॉ फॉर द, कल अपन देखे थे सब्सटेंटिव लॉ पढ़े, प्रोसीजरल लॉ पढ़े। देयर इज आल्सो कॉल्ड एज एग्जेक्टिव लॉ बोल के भी रहता। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स and compelling the others to perform his or her duty, rules are prescribed by law. Rules are procedural in nature, and the law which prescribes such rules is known as procedural law. Is known as procedural law. It provides the rules for proceedings in matter before the authorities and judiciary. For example,
CPC 1908, CRPC 1973 are procedural laws. Now अब अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? This subject we are dealing with the law of evidence is a procedural law. The law of evidence under the Indian Evidence Act 1872 is a procedural law which lays down the following rules. ये क्या है? रूल्स है. लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ने के कोई रूल्स है. ABC. What is the rule A? What fact may be used as evidence? अब sun rises in the east. क्या ये फैक्ट है? Yes. जी सर. क्या इसको एविडेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप? It's a matter of court. What is evidence? The thing which court accepts is evidence. ठीक है? Okay. How such facts are to be proved? अगर एक्सेप्ट करे तो कैसा उसको प्रूव करना है? अगर आप सुबह में बोले सन राइजेस इन द ईस्ट, अब उसको प्रूव कैसा करते हैं आप? How will you prove that sun rises in the east? अगर if I say now, अब क्या चल रहा? We are in night. मानते? No. अब मैं तो फैक्ट बोला आपको. प्रूव कैसा करते हैं, डिस्प्रूव कैसा करते हैं? By whom? See rule 3. Rule C. By whom and in what manner the evidence is to be produced. ठीक है? और by कौन और किस तरह से एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते, ये 3 लॉस है. ठीक है? लॉ ऑफ एविडेंस. नेक्स्ट, law of evidence is a procedural law, deals with the ways in which parties will show existence or non-existence of facts and circumstances, situations, so as to establish the existence or non-existence of rights and liabilities given under substantive law. How a particular piece of evidence is accepted or rejected. What is the role of judge? What is the role of magistrate? अब एक केस लॉ है. What is the case law? Ramesh Chandra Agarwal versus Regency Hospital, 2009. What does it said? Law of evidence is designed to ensure that court consider only that evidence which enables to reach a reliable conclusion. तो क्या बोले इसमें सुप्रीम कोर्ट? What does the Supreme Court said in this case law? Law of evidence is designed to consider only that evidence which enables to reach a reliable conclusion. ऐसे ही एविडेंसेस को लेना है, ऐसे ही शहादत को लेना है जो एक रिलायबल माने सबको सब माने जैसा रिलायबल कंक्लूजन आना, वैसे ही आप एविडेंसेस को लेते. ठीक है? वैसे डिजाइन क्या हुआ अपना 1872. नेक्स्ट, समझ में आ गया ये सुनो? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes sir. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अब ये किसको अप्लाई होता है, किसको अप्लाई नहीं होता, वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. Indian Evidence Act applies to all judicial proceedings in or before any court, including the courts of court martial. माने जो मिलिट्री कोर्ट जो रहते उसमें भी ये अप्लाई होता. लेकिन it does not apply to Army Act, Naval Discipline Act, Air Force Act, Indian Naval Discipline Act, and it does not apply to affidavits and proceeding before arbitrator. So affidavit is not a evidence, is not a proof. याद रखिए. ठीक है? क्लियर है पॉइंट? Yes, sir.
सो इसको अप्लाई होता ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स including the court martial. Does not apply Army Act, Naval Discipline Act, Air Force Act, Indian Naval Discipline Act, and it also does not apply to affidavits as well as proceedings before Proceeding before arbitration. arbitrator. Straight. ठीक है, अब कैसा है देखिए, नॉर्मली आप अपन वी लर्न इन आवर व्हाट यू कैन से इन आवर ड्राफ्टिंग, पहले केस आता, प्लीडिंग्स आता, प्लेन डालते, देन हाँ रिटर्न स्टेटमेंट आता, देन पहली हियरिंग होती। very अगर पहली हियरिंग में कोर्ट देखता कि क्या ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता क्या, तो अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा बोले तो सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी से क्या करते, बाहर जाके उसको सुलह कर लो बोलते। और जब वो सुलह होता तो एक न्यूट्रल आदमी को बीच में रखते, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, okay. तो वो प्रोसीडिंग्स को भी एविडेंस एक्ट अलाउड नहीं है, लेकिन स्पिरिट ऑफ एविडेंस आपको अप्लाई कर सकते हो उधर आप, लेकिन स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं रहता उस। ठीक है, नेक्स्ट, अब इधर वर्ड जो इस्तेमाल करे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वर्ड इस्तेमाल करे, इसका मतलब क्या है, एविडेंस एक्ट में तो नहीं है, लेकिन सीआरपीसी आपके पास, या सीआरपीसी, Yes sir. ओपन योर सीआरपीसी, ओपन योर क्लॉज 2 क्लॉज आई, सीआरपीसी है आपके पास? नहीं सर, और लेना है सर। है अपना ये मेजर एक्ट पूरे ले लीजिए, इंशाल्लाह मतलब सर। पूरे बेर एक्ट पूरे ले लीजिए आप लोग, हाँ ओके, हमेशा काम आते हैं आपको, कौन सी बुक आप खोलते हैं मत। इंशाल्लाह। सेक्शन 2 क्लॉज आई, ओपन योर सेक्शन 2 क्लॉज आई, do I have in our Judicially CPC? proceeding. हाँ सर। So Code of Criminal Procedure 1973। जी। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किधर डिफाइंड है कोड में? वन। 2 क्लॉज आई, यू हैव जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सो व्हाट इज एविडेंस में क्या पढ़े आप? इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो अपने बेर एक्ट में है, ओपन योर बेर एक्ट, सेकंड पैराग्राफ में देखिए, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किधर डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड इन सीआरपीसी 2 क्लॉज आई, एक्सप्लेनेशन के पार्ट में 2, सेक्शन 2 है, देन यू हैव एक्सप्लेनेशन के बाद आपको आता EFGHI। सो व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, प्लीज रीड। Judicial proceedings includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. So what is judicial proceedings? हेलो, उधर नहीं है, आप लोग कोई दूसरा काम कर रहे हैं। Any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken as on oath. oath, इसको बोलते हैं judicial proceedings। Judicial proceedings include any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। माने जो लीगली कसम खा के आप जो भी काम कर रहे तो उसको बोलते हैं लीगल जुडिशियल proceeding। जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, सो एविडेंस पढ़ रहे, एविडेंस में जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइंड नहीं है, लेकिन किधर है? सीआरपीसी में है। सीआरपीसी का रेफरेंस क्या है? 2 क्लॉज आई, समझ में आ रहा? हाँ।
So it means any proceedings in course of which evidence is legally taken on oath. Oath. अब एफिडेविट है, एफिडेविट में भी आप हमेशा प्लेंट लिख रहे आप, प्लेंट हमेशा क्या है, पहले एफिडेविट रहना, फिर इसके पीछे प्लेंट रहना, जो भी बोल रहे सही बोल रहे, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे बोल रहे, ठीक है। एवरीथिंग विच यू सबमिट टू द कोर्ट शुड बी ऑन एफिडेविट। तो एक केस हुआ था क्वीन एम्प्रेस वर्सेस तुलजा, 1888 का कोर्ट केस है। क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट एनी प्रोसीडिंग मे बी टर्म्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ओनली व्हेन इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने मकसद, is to determine legal relationship between persons or between him and community generally. तो मतलब what is a judicial proceeding, जिसका मकसद एक लीगल रिलेशनशिप मालूम करना है, ठीक है। हाँ। लीगल रिलेशनशिप का मकसद मालूम करना है, तो क्या है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गए। कोर्ट के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से क्या है, व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी चीज आप ओथ पे, लीगल ओथ पे लेते तो उसको बोलते जुडिशियल प्रोसीडिंग ना। एक और एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टीआर वर्मा 1957 का केस है। हेल्ड दैट एक्ट हैज नो एप्लीकेशन टू इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय ट्रिब्यूनल इवन दो दे मे बी ऑफ जुडिशियल इन कैरेक्टर। मतलब क्या है, जैसे आप ब्यूरोक्रेट बन गए आप, ठीक है, यू बिकम ए ब्यूरोक्रेट, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, तो आपको अगर कुछ भी शिकायत रही तो आप क्या करते, पहले कोर्ट को नहीं आते, छोटे कोर्ट्स एस्टैब्लिश है, उसको बोलते ट्रिब्यूनल्स, यू गो टू द ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल क्या है, इंक्वायर करता कब आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ, आपका प्रेयर क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो ट्रिब्यूनल्स को आप क्या बोलते, जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर नहीं कर सकते, बता रहा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द लॉ रिक्वायर्स सच ट्रिब्यूनल्स शुड ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। माने रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, आप जो सामने जो आया, जिसके अगेंस्ट शिकायत है, उसको क्या है, सुनने देना, उसको सुनने का मौका देना, उन्हें उसका उसका पॉइंट भी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इफ दीज रूल्स आर satisfied, inquiry is not open to attack on the ground that procedure laid by evidence taking evidence was not strictly followed। समझ आ रहा, तो इतना याद रखो, सुप्रीम कोर्ट क्या बताया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टीआर वर्मा में, कि ट्रिब्यूनल्स में जो चीजें होती उसको आप जुडिशियल कैरेक्टर नहीं बोल सकते, तो माने एप्लीकेशन टू इंक्वायरी, जुडिशियल कैरेक्टर का नेचर उतना ज्यादा नहीं रहता, तो इन लोग क्या फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। ओके। एक लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स 4i, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, डायरेक्ट आपको शॉर्ट में आता। लॉ ऑफ लेक्स 4i किसको बोलते, द लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स 4i। मतलब क्या है इसका, लॉ ऑफ द कंट्री और द फोरम। इंडिया का लॉ क्या है, व्हाट इज इंडिया लेक्स 4i, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज इंडिया लेक्स 4i, जवाब क्या आता आपका, कॉन्स्टिट्यूशन सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द इंडिया लेक्स 4i, लॉ ऑफ द कंट्री और फोरम, जो जो जगह रह रहे आप वो लॉ अप्लाई होता, ठीक है। अब जी। देखिए फॉर एग्जांपल, कंट्री ए है, कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री सी है। अब कोई आप चीज लेके जा रहे, तो कंट्री ए में और कंट्री सी में बैन नहीं है, लेकिन कंट्री बी में है, और आप फ्लाइट से जा रहे ना, अचानक क्या होता, ए टू सी जा रहे आप, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है आपकी, लेकिन कोई टेक्निकल रीजन की वजह से
कोई टेक्निकल रीजन की वजह से, तो क्या होता, कंट्री बी में वो प्लेन उतार लेते। अब अचानक उसमें क्या हो जाता, क्या है, रेड पड़ जाती, चेकिंग होती, और आप जो चीज लेके जा रहे थे वो कंफिस्केट हो जाती। क्या वो वैलिड है? क्या आपको सजा मिलना है आपको, जो चीज बैन हो गई बोल के? नहीं सर। यस और नो? नो सर। क्यों नो? क्योंकि वो तो ये अनएक्सपेक्टेड वो है ना सर, जहां पर से आप फ्लाइट पकड़े वहां तो वैलिड था हम्म, लीगली। अगर अगर आपको मालूम है, इफ यू नो दैट देर इज अ कनेक्टिंग फ्लाइट, तो जब, और आपको ये भी मालूम है, लॉ ऑफ इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, लॉ क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूजेबल। अगर आपको हम्म। मालूम है ये बी पे आप फ्लाइट रुकने वाली है, और आप होना बोल के वो चीज लेके गए, तो जब क्या होता? नहीं, इस चीज को तो अवॉइड करना चाहिए सर जनरली। मतलब वहां पे तो आपको सजा मिलना नहीं मिलना, वो एविडेंस इस्तेमाल होना नहीं होना आपके खिलाफ। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल एविडेंस इस्तेमाल होगा सर। तो तो क्या है, दैट इज लॉ ऑफ लेक्स फोराई। लेट्स फॉर अगर हाँ। आपको मालूम है फिर भी आप लॉ ऑफ लेके लैंड गए, अप्लाई। तो हम्म। इट सेज दैट यू हैव टू नो द लॉ। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे को मालूम नहीं था बोल के। हम्म। दैट इज लॉ ऑफ लेक्स फोराई। हमेशा देखिए, अब जितने भी कानून है उसमें इंडिया लिखा हुआ रहता। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हाँ लॉ सर, ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी सब्सटैंटिव लॉ है देखिए, हमेशा उसके साथ इंडिया का नाम जुड़े हुआ रहता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माने जी। इंडिया के राइट्स एंड ड्यूटीज बोल रहा हूँ। अगर आप फैक्ट देखे तो हमेशा क्या रहता, यू विल बी रिटर्न ए नेम के साथ रहता सब्सटैंटिव लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, प्रोसीजरल है बट नाम लिखे हुआ है इसमें, राइट? सो हाँ इट इज सर। गवर्न बाय द लॉ ऑफ द नेशन where the proceedings are taking place and not where the cause of action has taken place। समझ में आ रहा? तो क्या है लेक्स फोराई, मतलब द कंट्री और फोरम, इट इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेशन। झगड़ा किधर भी हुआ होने दो, अगर आप दो इंडियंस है, ठीक है, आप लड़ लिए जाके तीसरी कंट्री में, तो वापस आके दोनों किधर लड़ना है? इंडिया में। इंडिया में ही लड़ना क्या? है। अब बाहर भी है, अब जाके एम्बेसी में जाके बोले कि देखो झगड़ा हो गया बोल के, तो एम्बेसी वाला क्या करता, आप है दूसरे कंट्री में, लेकिन किस कौन से लॉ के तहत आपको सोल्यूशन करता हूँ? लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ दी लैंड, सबका वो। माने आपका कौन सी क्या जमीन है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। एग्जाम्पल देखिए, इफ एन अमेरिकन सिटीजन इज ट्राइड इन इंडिया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which took place in USA, the law of evidence as in force in India will be applicable and not the law of evidence of USA। तो क्या होता, अगर कोई अमेरिकन है इज ट्राइड इन इंडिया फॉर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which took place in USA, कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है? इंडियन लॉ। इंडियन लॉ। ये केस जिधर चल रहा उधर का लॉ अप्लाई होता, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर याद है आपको, 10 साल पहले मैंने सोचा, 10 से 12 साल पहले इटालियंस के जो नेवी के आर्मी आए थे अपने जो इंडिया में, दो मछुआरों को गोली मार दिए थे हाँ, केरला पोर्ट पे। केरला में। तो खामोशी से जो अपने इंडियन गवर्नमेंट के आए वो ना चले गए थे,
वापस भाग गए थे लोग। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या बोला, खामोशी से वापस दियो उन लोगों को। हम इधर क्या है, इधर हुआ वो चीज, तो इधर ही उसको लेक्स फोराई के हिसाब से जज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल एंड एविडेंस। ये समझ में आ गया, लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स फोराई क्या है? लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना हो। लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना है। ठीक है। अपना लेक्स फोराई क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। 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 उसके अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक छतरी है, वो छतरी के अंदर सब आते। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल एंड एविडेंस। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बता रहा? जहीरा हबीब उल्लाह शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2006 का केस है। प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल क्या है? इज रिफ्लेक्टेड इन न्यूमरस रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। अदल, the principle of fair trial manifests itself in virtually every aspect of our practice and procedure, including law, evidence. अब देखिए, application of these principles involves a delicate judicial balancing of competing interest in criminal trial. अब क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं आप, तो क्रिमिनल लॉ में क्या है, एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देर इज अ मर्डर। अब मर्डर क्या है, एक वेपन से होता। अब देखो, जब आप एविडेंस कलेक्ट करते रहते, अब वो वेपन को अगर छीए, कैसा छीते आप वो वेपन को, कैसा कलेक्ट करते? हाउ विल यू कलेक्ट दैट वेपन? ग्लव्स पहन के कर रहा है सर। ग्लव्स पहन के, पूरा प्रोटेक्शन लेके, कि भाई उस पे जो डिस्टर्ब नहीं होना, एविडेंस हो। अगर आप जल्दबाजी में क्या करते, वैसी छीन लेते, विदाउट एनी ग्लव्स, विदाउट एनी प्रिकॉशंस, सो वो क्या होता, वो आपके खिलाफ चले आता, प्रोसिक्यूशन के खिलाफ चले आता वो, कि उधर एविडेंस डिस्टर्ब हो जाता। अब आप लोग, हैव यू वॉच दिस मूवीज? ये पिक्चर देखे आप, तलवार? क्या है तलवार? ये आरुषि मर्डर केस। वॉच दिस मूवी, तलवार। आरुषि मर्डर केस के उस पे है। पुलिस वाले जो गलती करे शुरू शुरू में, पहले जो आते, पहले पुलिस वाले ही आते, पूरा हो गए बाद में, जो उन लोग एविडेंस लिए थे वो सही तरीके से नहीं लिए, तो आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ आरुषि मर्डर केस। आखिरी में अम्मा को डाल दिए थे, ना बेल पे छुड़ गए। तो प्लीज वॉच दिस मूवी, आरुषि मर्डर केस के बेस है तलवार, इरफान खान की मूवी है। राइट। सो क्या है, क्रिमिनल ट्रायल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज, पब्लिक एंड विक्टिम has to be weighed, not losing sight of the public interest involved in prosecution of persons who commit offenses. अपने Offenses. पास क्या है, innocent unless proven guilty। समझ में आ रहा? आप आप क्या है, अगर आपको एक्यूज है आप, जब तक के कोर्ट ये नहीं बताया कि आप गिल्टी है बोले, तो जब तक आपका इंटरेस्ट, आपका राइट सेव करना, और इन मेनी ऑफ द केसेस विक्टिम्स आइडेंटिटी रिवील नहीं करना बोलते, स्पेशली इन हीनस केसेस, लाइक यू हैव रेप केसेस, विक्टिम आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, ना ही एक्यूज की आइडेंटिटी रिवील करते आप मेजोरिटी केसेस में। अब देखिए, नॉर्मली अगर आप देखे होंगे, जब भी पुलिस वाले क्या करते हैं ऐसे हीनस केसेस में, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्या उसका चेहरा दिखाते? नो। क्या रहता उसको? कपड़ा रहता ना सर फेस पे। कपड़ा रहता। माने यू कांट रिवील द आइडेंटिटी। अगर उसकी चेहरा देख लिए तो क्या है, उसका एक प्रॉब्लम हो सकती। कल के दिन में छूट भी गया, लेकिन उन्हें क्या हो जाता जिंदगी भर के लिए
बदनाम हो जाता। तो आइडेंटिटी सेव करना है, एविडेंस भी देना है, फेयर ट्रायल भी करना है, और अगर साबित हो गया तो कन्विक्ट, नहीं हुआ तो एक्विट। क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल एंड एविडेंस। समझ में आ गया? इधर इंटरेस्ट माने Yes, sir. राइट्स की बात कर रहे हैं।